I have clinics at three locations. One is in Sankush, then Saket and Dwarka. Hello everyone. I hope you guys are doing fine. I'm Dr. Jyoti and I'm a practicing homeopath and counseling psychologist. I have clinics at three locations, Dwarka, Saket and Vasanthkunj, and 11 clinics at the rural part of India as well. तो आज के टाइम पे लाइक कोविड टाइम्स में इतना स्ट्रेस है आसपास एंड लोग दे आर नॉट एबल टू get proper treatment for their relatives. There is so much scarcity. इतनी कमी है सभी चीजों की. So I thought कोविड स्टोरीज हम एक सीरीज रन करना चाहते हैं जिसमें हम कोविड पॉजिटिव हुए पेशेंट्स को लाइव लेके आएंगे एंड उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. सो आज हमारे साथ मेरी एक पेशेंट है निरुपमा आर्या. निरुपमा आर्या दिल्ली में ही रहते हैं एंड उनका इंट्रोडक्शन हम सुनते हैं थोड़ा. तो निरुपमा आप कहाँ रहते हो अभी? Hi, doctor. Good evening. गुड इवनिंग. Ma'am, I live in Delhi. Vasant Kunj, I live. ओके ओके. तो अभी आप अकेले रह रहे हो या फैमिली के साथ रहते हो? Actually, I'm working here and my family is not living. My husband lives in Lucknow. So I stay here alone. ओके ओके. तो आप आपका तमारिया क्लिनिक के साथ काफी टाइम से रिलेशन है, मतलब मेडिसिन का और काउंसलिंग का सारी चीजों का रिलेशन है. प्लस वी हैव फैमिली लाइक रिलेशंस. तो आपको कोविड कब डिटेक्ट हुआ था? Actually, मुझे 27th of अप्रैल को मुझे फर्स्ट फील हुआ था. Like body ache was there, headache was there, and I was feeling that feverish like feeling was also there. Okay, so though the symptoms were like not very what to say common. Okay, so get like all three like fever, headache, and body ache together. Okay, and like it's a common symptoms of COVID also. Okay, so these symptoms I got first, and immediately I contacted you. Okay, that time I did get my RT-PCR done. Okay, so I contacted you. You told me like within like another day, like by afternoon, give me medicines. Okay, and as you promised, I got the medicines and I started my medication uh, with your medicine. Yeah. तो आपके अकॉर्डिंग आपने कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया था कोविड? कहाँ से हुआ था आपको कोविड? मुझे ऑफिस से हुआ था एक्चुअली. ऑफिस में one of my colleague got infected when he came back after Holi festival. Okay, so from that like one of my very close friend like whom like I do lunch and everything. Okay, so she was directly in contact with him. Okay, okay. Since I was in very close, so from office only I got this. Okay, and then after I started your medication, and then because I was not getting slot, I was not having any contact person from that, like I have to do this my RT-PCR done. So somehow I took your help also in that, and we were able to manage a guy. So that person came and took my test, and it was positive. I was actually expecting that. So ओके. सो जैसे ही आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आपका क्या रिएक्शन था? क्या फीलिंग थी आपके अंदर उस टाइम? फीलिंग थी एक्चुअली अर्लियर पहले ये था कि ये सब हो रहा है, लेकिन जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, एक मेंटली आपको इफेक्ट आता है कि ओ यू आर पॉजिटिव नाउ. Okay, anything means I may die also. That feeling also came because I'm staying alone, and every day my symptoms were changing. Okay, symptoms I told you that was like initial day. Okay, like I got high fever also. Okay, then I got chest congestion also. और उसके बाद हैवी कोल्ड, रनिंग नोज. ओके, एंड
headache was like continuous. So my symptoms was every day was changing. So I was very afraid, very afraid. But since I have been in touch with you past, I think more than 2 years. Okay, that really helped me a lot. And आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपका किसी डॉक्टर से कांटेक्ट हो जाए, ठीक है। और दे आर मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट, बट स्टिल कोई ऐसा पर्सन तो आपको पहले से आप टच में हैं, आप वो डॉक्टर हैं और उन पे आपको बिलीव भी है। बेसिकली बिलीव सिस्टम। ओके, सो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में, ये सबसे सबसे जो मतलब मैं कहूँगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि you were there and I can contact you anytime. It was like that. Okay. If it is like middle of the night, I can contact you. So that belief, stay here. Like I was able to manage and staying alone with the COVID thing, and my family all were in tension. Okay. Everybody was to me, but since I did not want it like that COVID virus should spread from me to my family members. So I told not to come. I will manage. Okay, and your back support was there. तो आपने आइसोलेशन प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो किया, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। That was a very nice decision. तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आया? उनको बहुत टेंशन हुई होगी। बहुत ज्यादा टेंशन में थे, सब लोग टेंशन में थे। मतलब एवरीबडी वाज लाइक, आई वाज गेटिंग कॉल लाइक एनीथिंग। सब लोग कॉल आ रही है और जिसको भी पता लग रहा है फैमिली में सब लोग कॉल कर रहे हैं। तो इट वाज एंड इट इज लाइक ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है आरटीपीसीआर का, सबसे पहला अगर पेशेंट को सिम्टम भी नहीं है तो सबसे पहले मेंटल इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर। एग्जैक्टली, इतना नेगेटिविटी है बाहर, पेशेंट को लगता है कि मैं मर भी सकता हूँ, ये बीमारी ऐसी है। बट मैंने यही तो बोला कि जैसे हाँ, बट चीजें ऐसे हैं कि अगर आप टाइमली चीजें करते हो, जैसे ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है या फिर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं कोविड के, सबसे पहली चीज आपको खुद को आइसोलेट करना चाहिए, जो आपने खुद को किया। एंड आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए। किसी भी कोई भी डॉक्टर हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट मेथड चूज कर सकते हो। एंड उसके बेसिस पे आप अगर गाइडेंस में हो तो टाइमली कोई भी डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बचा सकता है उस चीज से। तो डॉक्टर एडवाइस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज में। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट। तो हर केस में माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर 3 टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। हर केस को अलग अलग टाइप से ट्रीट करने की जरूरत है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप अपना SpO2 जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको दिन में 3 बार मेजर करिए और तीनों बार 7 मिनट वॉक करके दोबारा से आप मेजर करिए। अगर आपका SpO2 लेवल 92 से ऊपर रह रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो ठीक चल रहा है, आप दिन में 3 बार मेजर करिए, टेम्परेचर ठीक चल रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी अलार्मिंग या वार्निंग सिम्टम है आपके शरीर में, जैसे आपको छाती में बहुत हेवीनेस लगती है या टाइटनेस लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, एकदम से डिप कर जाता है और काफी टाइम तक नीचे ही रहता है, या फिर आपका फीवर जो है वो बहुत टाइम से उतर ही नहीं रहा है, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। जैसे ही आपको कोई भी अलार्मिंग सिम्टम लगता है, आप तुरंत डॉक्टर को बताइए। ठीक है। इसके अलावा निरुपमा, आपने क्या-क्या किया? कैसे आपने खुद को ठीक किया घर पे? मैम, जैसे आपने अभी बताया कि SpO2 चेक करते रहना, आपने मुझे भी बोला था कि कीप मॉनिटर दैट, तो वो मैं कर रही थी। दिन में मैंने 4 बार करती थी और इसके साथ-साथ मैं अपना टेम्परेचर भी चेक करती थी।
जिससे कि मुझे पता रहता था कि मेरी बॉडी में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज़ इन्हीं सब चीज़ों से आप पता कर पाएँगे कि बॉडी में और मेजर कुछ ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है, ठीक है? और मेडिसिन्स टाइम पर लिया। आपने मुझे मल्टीविटामिन्स को लेने के लिए बोला था, विटामिन सी, ज़िंक, कोविड और बी12, क्योंकि कोविड के साथ-साथ वीकनेस और बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? सो वो मैंने लिया, बहुत टाइमली फॉलो किया एंड इसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डाइट आपका, कि बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना है और आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं, फल और सब्जियाँ जो कि वाटर रिच हैं, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक भी नहीं कर रहे हैं और वाटर रिच फूड खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपकी किडनीज़ वगैरह पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आपके जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको मैंने फुल्ली फॉलो किया एंड आपने जो ये था कि since I'm staying alone, so you told me like you have to stay positive, Nirupama. So I did yoga, that uh, breathing exercise. Ritually, I'm doing right now also, like morning and evening. It's not like I have been cured, so I will stop these things. I'm doing this, and I will be doing, because effect will be there. And since in this situation, we have to keep our body, you know, uh, that immunity system should be strong, and breathing exercises are best in that. So I followed whatever you told me. सो ये जो कोविड पेशेंट्स की रिकवरी है, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि निरुपमा की हिस्ट्री में न्यूमोनिया की हिस्ट्री रह चुकी है। उनको लास्ट आई थिंक 1 एंड अ हाफ इयर्स पहले न्यूमोनिया हो चुका है एंड शी वाज़ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर दैट आल्सो। Despite of that, she has came out of the COVID situation like a warrior. वो उससे बाहर निकले, उनको पता था उनका मेडिकल हिस्ट्री है न्यूमोनिया का, बावजूद उसके उन्होंने पैनिक नहीं किया, वो घर पे रहे, उन्होंने अपना अच्छे से ख्याल रखा, उन्होंने अपने सारे वाइटल्स हमेशा मेजर करके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, वो मुझे बताते थे। एंड ये प्रॉपर डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहना, ओआरएस की बहुत वैल्यू है कोविड के केसेस में। तो निरुपमा में न्यूमोनिया का हिस्ट्री था, बावजूद उसके निरुपमा को ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं आए कोविड के एंड शी वाज़ एबल टू टेक केयर ऑफ हर वेल्थ। तो इससे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोविड हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और आपको ठीक से खाना-पीना रखना, अपने वाइटल्स मेजर करके रखना और ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही आपको लगती है कि थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो निरुपमा, आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेके कैसे लगा कोविड के लिए? आपके सिम्पटम्स में कैसे चेंजेस आए? कैसे रहा सारी चीज़ें? मैम एक्चुअली होम्योपैथ में मेरा पहले से ही बिलीव है। हुँ, हुँ। लोग कहते हैं कि बहुत स्लो रिकवरी है और इनफैक्ट अभी भी मैं ऑफिस में मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। जैसे पूछते हैं लोग कि तुमने क्या-क्या मेडिसिन्स लिया? आई सेड आई टूक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो लोग शॉक हो जाते हैं कि तुमने ये रिस्क क्यों लिया? आई मीन क्यों नहीं एलोपैथ लिया? तो मैंने बोला, ये बोलते हैं कि स्लो रिकवरी है, बट मुझे नहीं लगता इतना स्लो रिकवरी है। मतलब मैंने, जैसे मुझे कोल्ड होता है या मुझे फीवर होता है, तो अगर मुझको कोई भी एलोपैथ मेडिसिन, डोलो है या एनीथिंग, अगर वो मुझको 4 टू 5 आवर्स में वर्क करेगी, तो होम्योपैथिक में भी इट मे टेक 2 मोर आवर्स, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो स्लो रिकवरी है, साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि मेडिसिन्स लेने के बाद आपको बॉडी पे इतना वीकनेस हो जाएगा और उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे आपकी तबीयत ठीक होने के बाद भी, ठीक है? ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इसमें जो ट्रीटमेंट है आपका, मतलब सिर्फ आपकी जो डिज़ीज़ है उसके साथ-साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है? बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं जो कि लाइक दीज़ डेज़ आई थिंक एवरीबॉडी नोज़ कि जो आपका ये
जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें मोस्टली पीपल गो टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें उसका पूरी तरह से इलाज है। तो ये सिर्फ एक व्हाट टू से आई वुड से दिस मिथ एक्चुअली, कि लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत स्लो है और मे वर्क और इट मे नॉट वर्क। इट ऑलवेज वर्क। द नीड थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव ऑन दैट एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो निरुपमा, आपकी फैमिली कहाँ रहती है अभी? मेरी फैमिली बिजनौर में रहती है मैम। तो एक्चुअली मेरा मदर साइड बिजनौर में रहता है। द पार्ट इट्स बिजनौर इज स्टेट व्हिच लाइक लाइज इन वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी, एंड इन लॉज फैमिली लिव्स इन लखनऊ। ओके, तो अभी आपकी फैमिली कैसी है कोविड सिचुएशन में? अभी बेटर है मैम, अभी बेटर है। तो उन अभी लोगों को भी कोविड हुआ था? सबको कोविड हुआ था एंड माय मदर वाज बैडली अफेक्टेड। और आपकी मेडिसिन ने उनको काफ़ी इम्प्रूव किया है। उन्होंने मुझे बोला है कि उनकी जो कफ, जो भी खांसी है, वो पहले से स्लोली स्लोली कम हो रही, क्योंकि उनको बहुत सीवियर था, बहुत बैडली अफेक्ट किया था। तो उनको स्लोली स्लोली उनका वो खांसी ठीक हो रहा है, एंड शी इज टेलिंग मी लाइक दीज मेडिसिन आर एक्चुअली वर्किंग। तो हेल्थ सिस्टम कैसा है वहाँ पे जहाँ पे आपके पेरेंट्स अभी रहते हैं? हेल्थ सिस्टम हेल्थ कैसे है? सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है मैम। इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल टाउन के। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड और ऑक्सीजन कुछ अवेलेबल नहीं है। एंड नाउ जब किसी का पैनिक सिचुएशन आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको बेड नहीं मिल रहा है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, देन दे रशिंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी में दे कैन नॉट से नो। तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और वहाँ पर भी क्योंकि फुल है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों का स्ट्रेचर पर ही वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लोग रात रात इमरजेंसी में ही, इमरजेंसी वार्ड में ही वो लोग पड़े हुए हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एंड थिंग इज दैट in Bijnor, it's like if people are going to hospital, there are very less chances like they will come back. This is the situation of these days. तो आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जो गांव में लोगों को हेल्प कर सके और वो यहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सके, तो वो बेटर रहेगा उन लोगों के लिए कि Of वो course, डॉक्टर of डायरेक्टली course, कंसल्ट कर सकते हैं और फिर उनके जो भी of ब्लड course. मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ के लिए विजिलेंट रहिए। अभी जैसी सिचुएशन है, सबको मालूम है ये इसको टाइम लगने वाला है, ठीक है? तो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें, अपनी हेल्थ के लिए विजिलेंट रहें। अगर कोई भी सिम्टम आता है, उसको इनिशियल स्टेज में ही, उसको ऐसा नहीं कि उसको बढ़ने दें। अगर आपको फीवर आ रहा है कॉन्टिन्यूसली, लाइक आप बस फीवर का मेडिसिन खा रहे हैं, और वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देगा, देन अगेन योर फीवर विल कम। सो फीवर इज अ साइन लाइक समथिंग is इज going रॉन्ग। bad in your body. It's a symptom. You need to definitely consult a doctor. और अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आता है मैम जिसमें कि लोग घर से ही कांटेक्ट कर पाते हैं डॉक्टर को, तो इससे अच्छा आज की सिचुएशन में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे पेशेंट्स को कि अगर किसी को कोविड निकलता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो सिचुएशन आपके जैसी है, जो अकेले रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसी सिचुएशन ना ही आए। आप लोग पूरी तरीके से मास्क वेयर करके रखें, हाथ धोते रहें। अगर आप बहुत ही कॉन्शियसली अपना ध्यान रखेंगे, तो बहुत कम कि आपको कोविड होगा, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर्स भी हैं, वो भी हॉस्पिटल में पेशेंट, जो कोविड पेशेंट है उनका इलाज कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? वो भी अपने आप को पूरी तरह से पैक करके, पीपीई किट पहन के वो सब कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऑफिस जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से एक तो सावधानी बरतिए कि ना हो कोविड। और उसके बावजूद भी अगर आपको हो जाता है, ठीक है? क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं कि ये एयरबॉर्न है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी हवा में आ गया है ये वायरस, ठीक है? कुछ न्यूज़ हैं, कुछ रूमर्स हैं, और आ रहा है। तो अगर हो जाता है, तो उसको बहुत इनिशियल स्टेज में आपको जो भी सिम्पटम है, आपको कफिंग है, आपको चेस्ट में कोई कंजेशन है,
आपको आईज में बर्निंग है, आपको बॉडी एक है, हेड एक है, आपको लग रहा है कि विदाउट एनी रीजन थिंग्स आर, तो वी विजिट फॉर योर बॉडी। और उसके बाद आप, आपके पास अगर आपके कांटेक्ट में जो भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो भी, आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और अपना मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। हैव अ हेल्दी डाइट, ओके। और एक ऑक्सीमीटर आपको लेना होगा, क्योंकि ऑक्सीमीटर क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है दैट यू आर सेफ, even if you have fever, you have other symptoms also, but if your oxygen level is below 92, सो अबव देन 92, सॉरी, सो उसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और एक थर्मामीटर भी आप अपने पास रखिए, और साथ में विटामिन सी, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रिक फूड्स ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिकेशन इमीडिएटली स्टार्ट करो। एंड मेरा बिलीव होम्योपैथिक में है, तो आई वुड से दैट प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति इज अवेलेबल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओके। आप गूगल से उनका नंबर ले सकते हैं और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन, आप जहाँ पर भी हैं, आप ऑल ओवर कंट्री, आप कहीं पर भी हैं, आपको मेडिसिन विद इन डे और 2 पहुंच जाएगी। और उसके साथ साथ आपको एक फोन पर आपको कंसल्टेशन मिलेगी डॉक्टर की। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो मैं एंड में कुछ चीजें पेशेंट्स को बताना चाहूंगी। सबसे बड़ी चीज है सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको कोविड ना हो, सबसे अच्छी बात है। उससे बचने के लिए बीइंग डॉक्टर हम लोग भी काम करते हैं, वी आर फ्रंटलाइन वर्कर्स। हम पेशेंट्स को मिलते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट सबसे बड़ी चीज है सावधानी बरतना कि आपके हाथ जो हैं वो आपको अपने फेस पे कहीं पे भी टच नहीं करने हैं। आप मास्क पहनिए और अपने हाथ अपने फेस तक नहीं लेके आना है आपको। ये सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। आप डबल मास्क पहन के काम करिए, और फेस शील्ड यूज करना है तो आप फेस शील्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को कोविड है और उसने मास्क पहना हुआ है और सामने वाले इंसान ने भी मास्क पहना हुआ है, तो ट्रांसमिशन बहुत बहुत लेवल तक कम हो जाता है और वायरस जो है वो ट्रांसमिट ही नहीं हो पाता है। जहाँ पे भी आप बैठते हैं या जहाँ पे भी जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टच नहीं करना है और अपने फेस पर अपने हाथ नहीं लगाने हैं, और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप हाथ धोइए, आप हाथ सैनिटाइज करिए। इसके अलावा लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। इस ये बहुत बड़ी प्रिवेंशन है। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको कोविड होने के चांसेस बहुत मामूली है, ना के बराबर है। आप बहुत प्रोटेक्टेड रह सकते हैं इन सब चीज़ों से। इसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, सिंपल होम कुक्ड फूड लेते हैं, अगर आपको कोविड हो भी जाता है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बॉडी जो है वो रिकवर तभी करती है जब आप अच्छी चीज़ें अपने शरीर के अंदर डालते हैं। इसके अलावा विटामिन सी एंड जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कोविड अटैक करता है बॉडी में, तो बॉडी जो है वो सेलुलर लेवल तक इंजर हो जाती है। बॉडी कोविड से फाइट करने के लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। विटामिन सी और जिंक जो है वो सेलुलर लेवल पे हीलिंग करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा आप प्रॉपर रेस्ट करिए। हमारा शरीर जब हम रेस्ट करते हैं तब हील करता है खुद को। तो प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मेंटल सपोर्ट इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। इतना नेगेटिविटी है बाहर, तो अगर आपका मेंटल सपोर्ट रहेगा, आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, आप अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको एंग्जायटी नहीं होगी और बेटर सिचुएशन रहेगी आपके लिए। क्योंकि एंग्जायटी और स्ट्रेस की वजह से सिचुएशन और खराब हो सकती है, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। देन वाटर इनटेक एंड ओआरएस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाटर इनटेक ठीक रखेंगे, ओआरएस पीते रहेंगे दिन में 3 बार, तो काफ़ी बेटर सिचुएशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा हेल्दी बनाइए। आपका इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है आपको बीमारियों से बचाने के लिए। तो ये कोविड तो अभी आया है, पर आपका इम्यून सिस्टम आपको हमेशा हेल्प करने वाला है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। तो इम्यून सिस्टम का हमेशा हेल्दी
और सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सारी हेल्दी चीज़ें फ़ॉलो करिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जैसे हम दिन भर में अगर काम ज़्यादा नहीं करते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है। जैसे लोगों का अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसकी वजह से लोग बैठे रहते हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। ये मूव ना करने की वजह से एक तो इम्यून सिस्टम लो होता है, ऊपर से 2-3 बीमारियाँ और लग जाती हैं। जैसे हमारा पेन रहता है, स्टिफनेस रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लोगों को शुरू हो जाता है, विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है लोगों में, तो ये सारे सिम्पटम्स और बढ़ जाते हैं। तो आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करिए और 7 से 8 घंटे की आप नींद लीजिए और अपने आस-पास अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप हेल्प करिए। लोग अगर आपसे दूर हैं, वो कहीं और रहते हैं, तो फ़ोन पे कनेक्टेड रहिए, उनका हाल-चाल पूछिए। थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि जो भी आपकी लाइफ़ में है, पॉज़िटिव रहिए, थैंकफुल रहिए कि आपके पास सब है, आपके पास खाना है, हेल्थ है, काम है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। ट्राई टू पिक पॉज़िटिव फ्रॉम एवरी नेगेटिव थिंग। अभी लॉकडाउन में आपको बहुत टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। ये सारी चीज़ें करिए एंड आप होम्योपैथी लेना है, एलोपैथी लेना है, आयुर्वेदा लेना है, जो पैथी आपको सूट करती हो, आप वो पैथी चूज़ करिए बट किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाइए ज़रूर। और जैसे निरुपमा ने कहा, इग्नोरेंस बहुत लाइक फेटल है कोविड केसेस के लिए। अगर आपको थोड़े भी सिम्पटम आते हैं, आपको थोड़ी भी डाउटफुल सिचुएशन लगती है, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको आरटी-पीसीआर के लिए एडवाइस करेंगे या जो भी डॉक्टर को ठीक लगता है, वो उस टाइम पे सजेस्ट करेंगे। एंड डॉक्टर को दिखा के बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगर आप जल्दी अपना इलाज शुरू करवाते हैं, तो आपका जो केस है वो सीवियर केस में लैंड ही नहीं करेगा। आपको बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे जल्दी से ही और बॉडी न्यूमोनिया प्रोड्यूस करे उसके पहले ही सिम्पटम्स को अरेस्ट किया जा सकता है। तो आप स्वस्थ रहिए, लोगों से बातचीत करिए, सब लोगों से कनेक्टेड रहिए एंड दिस शेल डू पास। ये सब चीज़ें चली जाएँगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है एंड लेट्स स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। On this note, I want to close this session and Nirupama, thank you so much हमें थैंक यू जॉइन सो मच मैम। स्टोरी शेयर करने के लिए लोगों के साथ। थैंक यू। Thank you, bye.